Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am a Professor Nilesh Anandwani. I welcome you from my YouTube channel Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. Today I have brought one of the most interesting topic ever in the field of genetics, in the field of biotechnology, which has created one of the most important magic in the field of biotechnology, that is polymerase chain reaction. So what is actually polymerase chain reaction? क्या होता है polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction is PCR. It is also known as a gene amplification. Okay? तो आज हम देखेंगे PCR क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. ये जो टॉपिक है ये 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में, ये जो टॉपिक है ये CBSE में, नेट सेट में, पेट में, IIT JEM, गेट, इन सभी एग्जाम में, IIT JEM इन सभी एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है. तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूँगा इस टॉपिक के बारे में, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊँगा, मैं आपको टेस्ट प्रोसीजर बताऊँगा, आपको बेसिकली इससे रिलेटेड जो एडवांटेजेस हैं, मतलब PCR कौन कौन से कंसेप्ट में, मतलब कौन कौन से टेक्निक में यूज़ की जाती है, ठीक है, वो सभी मैं डिटेल में बताऊँगा. तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं PCR. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज अ जीन एम्प्लीफिकेशन, व्हिच मींस amplification means to increase in size. Okay, like how amplifiers are there, we are speaking in a, you can say, mic in very short, but amplifier basically increase the volume of sound. Like in suppose there is a big you can say hole is there in which more than 2000 people are there, our voice can reach up to the 10, 20, 50 people. So we speak in a loud or in a mic, and 2000 people can increase, you can say they can listen just because sound is increased by the amplifier. So the word amplifier increases sound, amplification increases size of what? Size of gene. I hope so you got it. So gene amplification is a technique by which we can increase the size of a gene, and only not increase the size of gene, we can increase as number of copy of a gene from million to billion. From a small segment of a DNA you can make the several copies of gene, 1, 10,000, 10,000, lakh, 2 lakh, 5 lakh, million, billion copies of DNA. So let's start PCR in detail. Polymerase chain reaction is simply called as a gene amplification. It is a one technique by which we can increase the size of a DNA, we can multiply the copy of DNA, and this technique was introduced by the scientist called Kerry B. Mullis in the year 1983, and he got Nobel Prize in the year 1993. Kerry B. Mullis introduces this technique in the year 1983. In some book it is given 1984, in some internet website also it is given 1984, but most probably if you search in maximum then you will get answer, that is 1983. So in 1983 Kerry Mullis invented this technique called as a PCR, polymerase chain reaction, you can call it gene amplification, and he was awarded by Nobel Prize in the year 1993. He also patented this technique. What does it mean patent? जब कोई इंसान किसी चीज़ की डिस्कवरी करता है या तो किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है, तो वो चीज़ कोई अपने खुद के नाम पे न करवा ले, इसके लिए जो डिस्कवरर हैं वो खुद के नाम के ऊपर उस चीज़ का अधिकार मांगते हैं गवर्नमेंट से, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पेटेंट. इसके बाद ये टेक्निक कोई भी लेबोरेटरी में यूज़ करेगा तो उसकी रॉयल्टी जो होती है, मतलब उसकी इनकम जो होती है, वो बेसिकली उनमें से कुछ परसेंटेज कैरी मुलिस के नाम पे जाएगा. ठीक है, तो ये होता है पेटेंट. तो कैरी मुलिस ने इस चीज़ को, इस टेक्निक को इन्होंने पेटेंट कर लिया था. अब हम चलते हैं आगे डिटेल में, वन बाय वन चीज़ें हम देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्निक, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप एप्लीकेशन सुनोगे ना तो इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपको इस टेक्निक के बारे में.
applications of PCR. So we will see applications of PCR. There are several, you can say, applications of PCR. Let's see one by one. So I'll tell you around 5 to 6 you can say applications of PCR, which are also given in the internet, which are also given in our textbook. But in the case of CBSE, the number of application is very less. So I'll tell you in detail. First, it help in forensic analysis. Second, it create millions to billions of copy of gene in short time. It is used in clinical diagnosis. It is used in DNA fingerprinting. Used in research. It is used in research field. Means these are the basic applications. You can also go for beyond it. You can say like clinical diagnostic means you can say like biomedical field to find infectious agent. Okay. Used in gene cloning. It can also be used for gene banking. So I'll tell you all these applications one by one. So if you understood all this application, then you will get too much craze that how PCR basically work. So we will see the you can say procedure. First, it help in the forensic analysis. Forensic analysis is a branch of science which deal with the study of crime branch. So any crime branch related things like you can say murder cases, rape cases. So in murder cases, rape cases, PCR technique is useful because it is murder case and rape cases can also be done with the help of DNA fingerprinting technique. Second, it creates millions to billions of a copy of a gene in a short time. I'll tell you how much DNA sample is basically taken for the PCR. How much DNA sample load in PCR. मतलब PCR मशीन जो होती है उस मशीन को हम कहते हैं PCR मशीन, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम है थर्मल साइक्लर. तो थर्मल साइक्लर के अंदर एक्चुअली थर्मल मतलब टेम्परेचर, साइक्लर मतलब साइक्लिक चेंजेस, एक चक्र फिरता है. ठीक है, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए पहले हीटिंग होती है, उसके बाद स्पेसिफिक टाइम के लिए कूलिंग होती है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक टाइम के लिए पॉलीमराइजेशन होता है. तो ऐसे 3 स्टेप होती है और तीनों स्टेप में अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है. इसके लिए ये जो मशीन है, इस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर. मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थर्मल साइक्लर के बारे में. तो थर्मल साइक्लर कितना सैंपल लोड करता है? थर्मल साइक्लर कैन लोड 0.1 to 10 kbp. Means kbp means kilo base pair. Like adenine
थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो ये 4 नाइट्रोजन बेस हैं, तो ऐसे इन्हें हम कहेंगे 4 kbp, ठीक है, 4 kbp। इन्हें हम कहेंगे 4 बेस पेयर, ATCG, तो ये है हुए 4 बेस पेयर। लेकिन 1000 नाइट्रोजन बेसेस मीन्स 1 K मीन्स किलो का मतलब होता है 1000 नाइट्रोजन। जैसे हम YouTube पे सब्सक्राइबर देखते हैं, 1K का मतलब होता है 1000, तो यहाँ पे K का मतलब होता है किलो, BP मतलब बेस पेयर, किलो बेस पेयर। यू कैन से 1000 kbp मीन्स 1000 किलो बेस पेयर। तो ये कितना नाइट्रोजन बेसेस जनरली यूज कर सकते हैं? 0.1 to 10 kbps, मतलब 0.1 से लेकर 10,000 नाइट्रोजन बेसेस एट अ टाइम ये बना सकते हैं। लेकिन पीसीआर के काफी सारी टाइप है। There are so many types of polymerase chain reactions are there. At the end, I will also tell you some famous type of a PCR through the screen recording. Yes, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू पीसीआर के कुछ टेक्निक बताऊंगा। और वो पीसीआर के टेक्निक बेसिकली कुछ पीसीआर के टेक्निक ऐसे हैं जिनमें 10 kbp से लेके 40 kbp तक सैंपल यूज किया जाता है, मतलब 40 kbp तक भी सैंपल यूज किया जाता है पीसीआर में। तो ये जनरल जो पीसीआर होती है उसमें 0.1 to 10 kbp होता है। लेकिन कुछ पीसीआर ऐसे हैं जहाँ पे 40 kbp मतलब 40,000 नाइट्रोजन बेसेस, 40,000 नाइट्रोजन बेसेस तक हम लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं एट अ टाइम, वन टाइम। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड थिंग वाज इट क्रिएट अ मिलियन टू बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ जीन इन अ शॉर्ट टाइम। काफी कम टाइम के अंदर इतने लाखों करोड़ों नाइट्रोजन बेसेस की कॉपी, जीन्स की कॉपी बन जाती है। थर्ड वन, it is used in the clinical diagnosis. What is clinical diagnosis? Means when you are finding any laboratory, when you are doing any laboratory test to find the number of diseases, it is simply called as a clinical diagnosis. Like जैसे कोरोना टेस्टिंग हुई, एड्स टेस्टिंग हुई, हेपेटाइटिस टेस्टिंग हुई, तो इन टेस्टिंग के लिए वायरस को फाइंड आउट करने के लिए हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इट इज यूज्ड इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। DNA fingerprinting is one of the best technique available nowadays with us. Yes, and this technique can be useful for murder case, rape case, terrorism. Means all the crime branch or you can say forensic analysis can also be done by the you can say DNA fingerprinting. और DNA fingerprinting में भी DNA की साइज को खींचने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें PCR की जरूरत होती है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए, इट इज यूज्ड इन द रिसर्च। कौन सा रिसर्च? मान लो माइक्रोबायोलॉजी फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, कौन सी भी फील्ड हो, डीएनए तो सभी सब्जेक्ट्स में आता ही है। ठीक है, डीएनए की स्टडी इन सभी सब्जेक्ट्स में आती है। इवन दो केमिस्ट्री भी अगर आप कंसिडर कर लो, इवन दो आप लोगों को मैं बता दूं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए कैरी मुलिस को जो नोबेल प्राइज मिला 1993 में, वो फिजियोलॉजी ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही मिला है, क्योंकि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के स्टडी करने वाली एक कंसेप्ट है जो उन्होंने इन्वेंट की थी। सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिसर्च में भी हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बायोमेडिकल फील्ड टू फाइंड द इन्फेक्शियस एजेंट। एक्चुअली ये वाला और ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ये नियर अबाउट एक जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द जीन क्लोनिंग। व्हाट डज इट मीन बाय जीन क्लोनिंग? Like I'll tell you, suppose you are doing you are producing a human insulin. Okay, so for the human insulin production, at the beginning you need a pancreas of a human being. Means you will take a beta cells from pancreas of human being. One process is completed, upstream downstream is completed, you have got the insulin. आपने इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग का एक बीटा सेल, पेंक्रिया का बीटा सेल लिया और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फर्मेंटेशन सब हो गया, आपने इंसुलिन बना लिया। ठीक है, ये तो चलो हो गई। अब आप जब नेक्स्ट टाइम ये प्रोसेस करना चाहोगे तो आप जीन कहाँ से लाओगे? तो इट्स बेटर कि आप एक जीन जो है उसकी मल्टीपल कॉपी करके रखो। ठीक है, मल्टीपल कॉपी। अगर मेरे पास कुछ मटेरियल और मैं मेरे स्टूडेंट्स को दे दूँ, तो मेरे पास अगर वो मटेरियल की कोई कॉपी होगी तो मैं आने वाले दूसरे स्टूडेंट्स को दे सकूँगा ना। तो ये सिंपली क्या है, ये कॉपी करने में, जीन्स की कॉपी करने में, जीन का नंबर बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द जीन बैंकिंग। जीन बैंकिंग की अगर आपने कंसेप्ट सुनी हो तो देखिए,
like how blood banking is there, in which blood is collected, blood is tested and blood is preserved and sell to the patient those who need a blood. सेम वे जीन बैंक भी एक ऐसी मतलब बैंक होती है जहाँ पे जीन्स को कलेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में से, जीन के सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, उन जीन्स की स्टडी की जाती है, उन जीन्स को मल्टीप्लाई किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, उनकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ाई जाती है और जीन को बैंक के अंदर प्रिजर्व कर दिया जाता है। ये क्यों? ताकि कोई अगर बंदा, कोई अगर स्टूडेंट्स, कोई कैंडिडेट कहाँ, कोई रिसर्च स्कॉलर अगर कहीं पे पीएचडी कर रहा है, अपना रिसर्च कर रहा है, तो उनके पास जीन सैंपल कहाँ से लाएगी? तो उनके पास ये जीन बैंक में से जीन्स आएगी। So gene bank is the best option to preserve to collect the gene, to test the gene, to preserve the gene, and ultimately useful for the research purpose. So these are the applications of a polymerase chain reaction. Let's move towards requirement of a polymerase chain reaction, and after the requirement we will see steps of a polymerase chain reaction. You will love this lecture at the end, after the conclusion, after the you can say complete procedure of a PCR. So let's discuss now about a requirement of PCR. A requirement of PCR. अब आप ये तो चीज समझ गए होंगे कि अगर हम डीएनए की साइज बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले पीसीआर में बेसिक जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगा? डीएनए सैंपल। हमें 5 चीजों की काफी जरूरत है। वो है फर्स्ट वन, डीएनए सैंपल और जीन सैंपल which can amplify। हम डीएनए सैंपल या जीन सैंपल को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं एज ए सैंपल? क्योंकि हमें उसे क्या करना है? एम्पलीफाई करना है, मतलब उसकी साइज बढ़ानी है। बाय विच प्रोसेस? बाय जीन एम्पलीफिकेशन, मींस बाय पीसीआर। सेकंड थिंग, वी नीड डीएनटीपीएस। अभी डीएनटीपीएस का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या होता है ये? DNTPS स्टैंड फॉर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसेस डीएनए में होते हैं, लेकिन जब हम पीसीआर करते हैं तो उसे हम नाइट्रोजन बेसेस नहीं करते हैं, हम उसे कहते हैं DNTPS, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो 4 हैं वो कैसे होते हैं? DATP, DCTP, DGTP, DTTP। अब आप इनका फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है? फर्स्ट वन DATP मीन्स डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे डीएनए में ये 4 नाइट्रोजन बेसेस है ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन विद थाइमिन डबल बॉन्ड, guanine with cytosine triple bond. So this is deoxy, means this deoxy adenine triphosphate. Got it? Deoxy cytosine triphosphate, deoxy guanine triphosphate, deoxy thymine triphosphate। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन बेसेस की क्यों जरूरत है? अगर आपके पास ये 4 नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक है, अगर आप डीएनए की साइज इतनी बड़ी करना चाहते हो जिसमें 1000 नाइट्रोजन बेसेस तक बड़ा हो, तो नाइट्रोजन बेसेस कहां से लाओगे आप? तो नाइट्रोजन बेसेस ऐड करोगे तो ही डीएनए की साइज बड़ी होगी ना। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है, जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर डीएनए बड़ा होता है, वैसे ही हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो टेक्निक से डीएनए की साइज खींचेंगे, उसे ही हम कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है पीसीआर मशीन,
मैंने क्या कहा था पीसीआर मशीन का दूसरा नाम क्या है? इट इज कॉल्ड थर्मल cycler. So PCR machine is also known as a thermal cycler. And why we called it as a thermal cycler? Thermal means a temperature and cycler means changes. One step, second step, third step, again first step, second step, third step, again first step, second step, third step. So this is 3 steps are again and again repeating. That's why it is called cycler. Why we call thermal? Because it is related to temperature. इस पीसीआर टेक्निक में हम 3 टेम्परेचर यूज करेंगे, ठीक है। एक होगा 90 बेसिकली 92 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जब हम टेम्परेचर यूज करेंगे वो 55 होगा। तीसरा जो होगा वो 72 होगा। दैट्स व्हाई हम टेम्परेचर का यूज करेंगे, इसके लिए इस मशीन को हम कहते हैं थर्मल साइक्लर। फोर्थ जो चीज है, ठीक है, हम बेसिकली 4 चीजों का यूज करते हैं। वो 4 चीजें होती है डीएनटीपी, थर्मल साइक्लर मशीन, डीएनए सैंपल और फोर्थ होता है यहाँ पे डीएनए प्राइमर। अभी क्या होता है देखिए डीएनए प्राइमर, जैसे ये नाइट्रोजन बेसेस है, देखिए ये एडिनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन। तो एडिनिन के सामने थाइमिन ही अटैच हो, ये कौन अट्रैक्ट करता है? अट्रैक्ट करने की प्रोसेस कौन करता है? डीएनए प्राइमर। और ग्वानिन के सामने साइटोसिन ही अट्रैक्ट हो, वो कौन प्रोसेस करता है? डीएनए प्राइमर करता है। तो डीएनए प्राइमर जब मैं आपको स्टेप्स करके बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डीएनए प्राइमर इज अ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड which basically attract the complementary nitrogen base. A attract towards a T and G attract towards a C. ठीक है, एंड अब हम फोर्थ वहां पे हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि पॉलीमरेज एक ऐसी एंजाइम है जो डीएनए को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तो डीएनए को अगर आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड आपको बनाने के लिए अगर डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो डीएनए पॉलीमरेज मान लो अगर आप इकोलाई बैक्टीरिया में से डीएनए पॉलीमरेज निकालते हो और वही पॉलीमरेज एंजाइम आप पीसीआर में यूज करते हो, तो ये काम नहीं आएगी। क्यों काम नहीं आएगी? मैं आपको एक सीधा सरल उसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। इकोलाई बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा 37 to 40 डिग्री टॉलरेट कर सकते हैं, और हमारे पीसीआर टेक्निक में 3 प्रकार के टेम्परेचर हैं, 92 to 95, 55 और 72। अब आप सोचो कि सबसे कम टेम्परेचर है वो 55 है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो है कितना? 92 to 95। अगर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो इकोलाई बैक्टीरिया तो 40 डिग्री के ऊपर मर जाएंगे। अगर इकोलाई बैक्टीरिया 40 डिग्री के ऊपर अगर सर्वाइव नहीं कर पाते तो हम जनरली इकोलाई बैक्टीरिया की पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कर ही नहीं सकते। तो हमें कौन सी एंजाइम चाहिए? हमें एक ऐसी एंजाइम चाहिए जो ऐसे बैक्टीरिया से मिले जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी पहले से ही रखते हो, ठीक है। तो टेक का फुल फॉर्म क्या है? जैसे हमने देखो एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के हमने टाइप देखे थे, हाइंड सेकंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सेकंड। तो ये जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस से होता है और पीछे के जो 2 या 3 लेटर होते हैं वो स्पीसीज से होते हैं। तो टैग का मतलब होता है, टी मतलब थर्मस, ए क्यू का मतलब होता है एक्वेटिकस। याद रख लो स्टूडेंट्स, काफी वैल्यूएबल कांसेप्ट है ये। व्हाई बेसिकली वी आर यूजिंग अ थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। हम क्या यूज कर रहे हैं? टैग पॉलीमरेज, मतलब थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। हम इस बैक्टीरिया की पॉलीमरेज क्यों यूज कर रहे हैं आप समझ गए हो? फिर से एक बार समझ लीजिए इंग्लिश में। We are using a polymerase enzyme, but we are using a Taq polymerase enzyme. Means Taq, T stand for thermos and AQ stand for aquaticus, and this is polymerase enzyme. We have a 2 option. Either use a polymerase enzyme of a E. coli bacteria or either use a polymerase enzyme from Thermus aquaticus bacteria. Polymerase enzyme from the E. coli bacteria. E. coli is a normal bacteria, means a bacteria
which can tolerate temperature up to 37, 40 degree, max 45. But for after 45 degrees Celsius, this bacteria will die. If E. coli bacteria will die, obviously the enzyme DNA polymerase present in the E. coli, that will also die, that will also destroy. So it will be useless to us. But we are using a particular enzyme which can tolerate, which can withstand up to 94, 95 degrees Celsius, because in our PCR steps, highest temperature is a 95 and lowest temperature is a 55. So we can't use a PCR of E. coli bacteria which can stand up to the 40 degrees Celsius. So we have to use a polymerase enzyme from a particular bacteria which have ability to stand up to the highest temperature, and this bacteria is generally found in hot water. This bacteria is found in hot spring, hot water, and this bacteria already have a capacity to tolerate more than 100 degrees Celsius. That's why we are using polymerase enzyme from this bacteria, whose name is Thermus aquaticus bacteria, and the polymerase of this bacteria is called Taq polymerase, stand for Thermus aquaticus polymerase. जो कैंडिडेट नेट सेट के, गेट पेट के, आईआईटी जेम के हैं, उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाई वी कांट यूज a polymerase of E. coli bacteria? Because E. coli bacteria's polymerase cannot tolerate a high temperature. Understood? So these are the requirement of a PCR. First one, DNA sample. Second one, DNTP, deoxynucleotide triphosphate. You can say examples are deoxyadenine triphosphate, deoxycytosine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxythymine triphosphate. Then most important part is a on-shelf machine called as a PCR machine, thermal cycle. You can say thermal cycler. It is a scientific name of this machine. And then we are using a DNA primer which can attract the complementary nitrogen base, like a DNA primer. When it attaches to the adenine, it attracts the thymine, and when it attaches to the cytosine, it attracts the complementary base pair guanine. So this is function of a DNA primer. And at the last but not least, important enzyme without which you can't increase the size of a DNA. You can't make a one DNA into another DNA without the use of a polymerase enzyme. But here we are using a polymerase enzyme from the bacteria which can stand highest degree Celsius, that is Thermus aquaticus bacteria, and the name of enzyme is Thermus aquaticus polymerase, Taq polymerase in short. Okay, so I hope so आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब कुछ. अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ अ पीसीआर की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आप लोगों को ये पूरा सब समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है. और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें. ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर की तरफ. Steps of polymerase chain reaction. Steps of polymerase chain reaction. Okay, now generally in a polymerase reaction there are three steps. One is heating, second one is a cooling, and third one is a polymerization. They also have double names. Like first one, heat denaturation, also called heating. Heat denaturation also called heating, and it has a third name called melting, but I will use it. Okay. Melting. So heat denaturation, also known as a heating, it is also known as a melting. Second step, annealing, also known as a cooling. And
and last step, that is polymerization, also known as extension. Okay, you can also say elongation. These are not name created by myself. These are name already given on the internet. You can say Wikipedia, Google search engine. You can find these names. So we are moving with a 3-step. First one, heating, in which we will break the DNA strand in 2 different parts. Second one is the annealing, in which we will try to put the new nitrogen bases and it will join with each other. And finally, third step, that is polymerization, in which new nitrogen base will attach to old strand and ultimately increase the copy of gene. So let's see in detail. Yes, now you just imagine this is called PCR vial. This is you can say PCR tube. This is called PCR tube, also known as a PCR vial. What is this? I'll tell you. जब हमें डीएनए की साइज को बड़ा करना है, या तो उसके जो जीन्स है, उसके सेगमेंट्स के जीन्स है, उसकी कॉपी नंबर बढ़ाना है, तो हम सैंपल किसके अंदर डालेंगे? इसके अंदर डालेंगे। तो ये है हमारा डीएनए। अब हमें इस डीएनए की साइज बड़ी करनी है। तो ये इतनी छोटी सी डायग्राम में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, तो मुझे समझाने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस चाहिए। तो आप कंसीडर कर लो, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये है नाइट्रोजन बेसेस। ये डायग्राम थोड़ी को कैमरे में दिखाई देती है नहीं, सो वी विल यूज दिस अ बिग डायग्राम। यस, लेट्स स्टार्ट स्टेप्स ऑफ पीसीआर। फर्स्ट one, heat denaturation is a first step of a PCR, which is also called heating, also known as a melting, in which we are treating the DNA sample at 95 degrees Celsius. Heat denaturation, इसे हम हीटिंग भी कहते हैं और इसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सबसे पहली स्टेप है, जिसमें हम डीएनए सैंपल को 95 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। और 95 डिग्री सेल्सियस तक जब हम डीएनए को हीट करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स गेट, you can say, melt और ब्रेक। यहाँ पे क्या होता है? 95 डिग्री सेल्सियस पे जब आप डीएनए को हीट करते हो, तो इसके अंदर के जो ये डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपस में टूट जाते हैं और टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन बेसेस जैसे ही टूट जाते हैं तो डीएनए डायरेक्टली हमें कुछ इस प्रकार से अलग दिखाई देता है। तो ये हुआ एडेनिन, ये हुआ थाइमिन, ये हुआ ग्वानिन, ये हुआ साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। कुछ थोड़ा डिस्टेंस में ड्रॉ करते हैं। आप ये समझ लीजिए बेसिकली कि हीटिंग के बाद हमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड मिलेंगे। एक स्ट्रैंड यहाँ पे होगा, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी। ये डबल बॉन्ड, इनके डबल बॉन्ड, इनके ट्रिपल बॉन्ड, इनके ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आफ्टर हीटिंग और आफ्टर हीट डिनेचुरेशन, double helical structure DNA gets separate and turn into 2 linear DNA. This is the first DNA, this is second DNA. In this first DNA, we have adenine, guanine. In second DNA, we have a thymine and cytosine. At the beginning, how it was? It was like that. ATGC. It was previously it was looking like that, but now it is looking like that. Okay. Now move to the second step. Annealing, also known as a cooling. It is a second step in the polymerase chain reaction, in which we are lowering the temperature, from how much? From 95
टू 55 डिग्री सेल्सियस। यस, एनेलिंग को हम कूलिंग भी कहते हैं। ये सेकंड स्टेप है पीसीआर की, जिसमें हम 95 से टेम्परेचर को लो करके 55 डिग्री सेल्सियस तक लेके आते हैं। और उस वक्त क्या होता है, प्राइमर स्टार्ट वर्किंग। तब क्या होता है, प्राइमर खुद का काम स्टार्ट कर देता है। अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे एक प्राइमर है, यहाँ पे एक प्राइमर है, यहाँ पे भी एक प्राइमर है, यहाँ पे भी एक प्राइमर है, और हमने 4 चीजें डाली थी। हमने क्या कहा था उसे, डीएनटीपीएस। ठीक है, डीएनटीपीएस, डीएनटीपीएस क्या थे वो, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्रांसफॉस्फेट। ये 4 चीजें थे। तो यहाँ पे देखिए, ये एडेनिन है वो थाइमिन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो थाइमिन है ये एडेनिन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो ग्वानिन है ये साइटोसिन को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो साइटोसिन है ये ग्वानिन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये देखिए आपके सामने जो एक स्ट्रैंड था डबल हेलिकल, वो हीटिंग करने के बाद अलग अलग हो गया, और कूलिंग में दूसरे नाइट्रोजन बेसेस आ गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर से बनने जा रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बनने शुरू हो गए, लेकिन ये तब तक नहीं बनेंगे जब तक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज नहीं होती। सो polymerization is a third step of a PCR, which is also known as an extension, also known as a elongation, in which we are increasing temperature from 55 to the 72 degree Celsius. दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक? Polymerization is a third step of a PCR, in which we are increasing temperature from 55 to the 72 degree Celsius. And after applying 72 degree Celsius, this polymerase enzyme convert this into double strand, and finally from one DNA molecule we have got 2 DNA molecule. Keep it in mind, heating in which double helical hydrogen bond get break down and turn into 2 linear molecule. In cooling, or you can say in annealing, primer attract the complementary nitrogen base, and here we got one double bond, one you can say in this side we get 2 linear strand, and in this side also we get 2 linear. They are linear until they react with a polymerase enzyme. So here there are 2 linear, here also there are 2 linear, and finally with the help of a polymerization, extension or elongation step, in which we are again increasing temperature from cooling from 55 to 72, and with the help of a tag polymerase enzyme, this 2 linear converted into double helical, and this 2 linear also get turned into the double helical. So now from one DNA molecule we have got 2 DNA. Likewise you can increase the copy of DNA. This 3 step collectively required a 3 to 5 minute. This 3 step collectively required a 3 to 5 minute inside machine. Which machine? Thermal cycler. I wanted to tell you one thing. मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में थर्मल साइक्लर मतलब पीसीआर के ऊपर एक वर्कशॉप अटेंड कर चुका हूँ, और उस वर्कशॉप के अंदर हमने ये चीज़ करके देखी हुई है। अगर आप थर्मल साइक्लर मशीन के अंदर काफ़ी सारे डीएनटीपीज ऐड कर दो, काफ़ी सारे प्राइमर ऐड कर दो। देखिए 5 चीज़ें क्या थी थर्मल साइक्लर, डीएनए सैंपल, टैग पॉलीमरेज, नाइट्रोजन बेसिस मतलब डीएनटीपी, और बेसिकली क्या था, प्राइमर। तो अगर आप डीएनटीपी प्राइमर ऐड करके पहले से ही पीसीआर वायल में या तो पीसीआर ट्यूब में पहले से ऐड करके रख दो काफ़ी सारे, और अगर एक साइकिल को मतलब हीटिंग कूलिंग पॉलीमराइजेशन, ये एक साइकिल हुआ, दूसरा साइकिल हीटिंग कूलिंग पॉलीमराइजेशन, तीसरा साइकिल हीटिंग कूलिंग पॉलीमराइजेशन, तो इस 3 स्टेप को हम कहते हैं, इन 3 स्टेप को कहते हैं हम एक साइकिल। तो समझ लो अगर आपको 1000 टाइम साइकिल रिपीट करना है तो एक साइकिल को 3 से 5 मिनट लगते हैं। ऐसे ही आप अंदाजा लगा लो कि अगर आपको 1000 साइकिल रिपीट करनी है तो 100 साइकिल रिपीट करनी है, तो इतना नाइट्रोजन बेसिस मतलब डीएनटीपी और प्राइमर पहले से ऐड करके रख दो। पॉलीमरेज एंजाइम तो एक ही एंजाइम आपको पूरे साइकिल तक काम आएगी, पूरी प्रोसेस तक काम आएगी, क्योंकि ये एंजाइम टेम्परेचर में डीनेचर होगी ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप पीसीआर मशीन में ये सब पहले से लोड करके प्रोसेस को कंटिन्यू करके 3, 5, 10 घंटे के लिए छोड़ दो, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम विच यू हैव सेटेड यू विल गेट
a long DNA molecule, or you will get million or billions of copies of gene. So this is PCR. अब चलिए मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर लेके चलता हूँ और रिकॉर्डिंग पे आपको कुछ पीसीआर से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ, पीसीआर के टाइप बताता हूँ, पीसीआर के साइंटिस्ट कैरी मुलिस से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और पीसीआर मशीन भी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, चलिए. So students, here we goes about polymerase chain reaction. Inventor of polymerase chain reaction, he is a scientist called कैरी मोलिस. एज यू कैन सी, मैं आपको इनके कुछ फोटोग्राफ्स बताता हूँ. ठीक है, तो आप ये देखिए, इनके कुछ फोटोग्राफ्स हैं कैरी मोलिस के. See, he is in a, you can say, particular conference he was holding this structure of DNA molecule, and he is a great scientist. ये उनका फोटो था जब वो नोबेल प्राइज रिसीव कर रहे थे. डॉक्टर कैरी मोलिस अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन द ईयर 1993. तो अब हम चलते हैं, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा से पीसीआर का, जो हमने पहले ही डिटेल में देख लिया हुआ है. ये है थर्मल साइक्लर मशीन. ठीक है, तो ये है थर्मल साइक्लर मशीन, जैसे हम पीसीआर मशीन भी कहते हैं. और ये होते हैं पीसीआर ट्यूब. यहाँ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे पीसीआर ट्यूब यहाँ पे लोड किए हुए हैं डायरेक्टली. इस ये जो है ना, ये यहाँ पे देखो 2 लीड क्लोज किए हुए हैं. इनको ओपन करके हम इसके अंदर डीएनए सैंपल ऐड कर सकते हैं. दीज आर द पीसीआर ट्यूब. these are 2 closed one and these are open one. After opening we can load the DNA sample in this. We can put the DNA sample in, means we have to put the DNA sample in this as well as DNTP in this, and you can say DNA primer, as well as we have to add the tech polymerase. So 4 requirements: first DNA primer, DNA segment, third one that's called tech polymerase, and fourth requirement is our this machine. Okay, so after closing this like this way, we have to put this into this. All these tubes are linked with each other, they are connected to each other, they are not single, and directly we can place them here. You can also make them separate, doesn't matter. We can make them separate for a single student purpose, and if you are in research laboratory, you can directly take a connected one and directly put in this. Here there is a screen where everything is shown, how much DNA sample is being elongated, size is increased, how much it is multiplied copies. So these are some steps which we have already discussed. See, what are basically requirement we need? We need a DNA sample, as I told you this. Yes, we need a primer, and we need nucleotide. We generally call deoxy nucleotide triphosphate, DNTPs. We need a tech polymerase enzyme, which is obtained from Thermus aquaticus bacteria, and we need a one buffer solution which we have to put into the test tube, and this is PCR tube. You can also call PCR vial. This is thermocycler machine. PCR cycle, basically one single cycle has 3 steps. Denaturation, which takes place at 95 degrees Celsius, as I told you, and second, annealing process, which takes place at 55 degrees Celsius, and third one, extension, which takes place at 72. Denaturation also called heating and also known as melting, and annealing also known as cooling, and extension also known as elongation, or famous name is polymerization. Here you can see same 3 steps. Like a heat denaturation, at the beginning DNA is double helical. सबसे पहले DNA double helical है. फिर देखिए, by the heat denaturation at 95 degrees Celsius, these DNA get break down. Yes, 2 DNA strand we get, but both are single strand. And in second step, annealing, we are lowering the temperature from 95 to 55, and this looks DNT, nucleotide, deoxythymine triphosphate, deoxycytosine triphosphate, deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate. Here is a DNA polymerase, tech polymerase. So these are getting joined, and after joining we got 4 strand. Out of a 2 we got 4 strand,
and this 4' turn into the 2 double helical structure with the help of Taq polymerase enzyme in the process called polymerization. Okay, so finally this is the process. We can repeat it 20 to 60 times, 20 to 40 times, but it doesn't matter, and we don't have to think about this only diagram. We can repeat it many times, but single cycle, this 3 step is called single cycle. These are the types of a PCR. If you have a time, you can pause the video and you can take a screenshot of this, and you can write the name of PCR. All these are the PCR with a different definition, different mechanism, and different purpose of uses. So thank you so much for watching this video. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा, मैंने अभी आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के इन्वेंटर कैरी मोलिस का फोटो भी दिखाया। उनका बेसिकली 2007 में एक यूट्यूब पे उनके बारे में एक इंटरव्यू भी था, तो आप यूट्यूब पे उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो। सिर्फ आप अगर कैरी मोलिस यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको उनका एक इंटरव्यू भी दिखाया जाएगा कि बेसिकली एक रिपोर्टर थे जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ था। तो मैंने भी वो पूरा इंटरव्यू उनका देखा हुआ है। उन्होंने ये एक्सपीरियंस बताया हुआ था, अपना शेयर किया हुआ था कि कैसे उनके माइंड में पीसीआर के बारे में कुछ चीज़ें आई और फिर उन्होंने पीसीआर को बेसिकली ये सबके सामने ये रखा। तो उसके बाद उनको 1993 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ और पीसीआर को उन्होंने खुद के नाम पे पेटेंट भी किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्लीज़ दिल से मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर। एक्चुअली ये हमें कहना नहीं चाहिए सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब करने से किसी का नुकसान नहीं होता है। अगर आप आज इस टॉपिक में काफ़ी सारी आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है, नॉलेज गेन किया है पीसीआर के बारे में, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में भी आपको ये सारी ऐसी जानकारी मिलेगी नए वीडियो में। तो सब्सक्राइब कर लेने में आपका ही भला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।